Good afternoon, everyone. I am back on Instagram, IGTV. This is Radhika Chopra. I am waiting for today's guest, and the first thing I'm going to do is make sure he's on before I speak any further about who I'm speaking to and what is this whole video about. So I have taken him through the what he's supposed to do. So I'm hoping he's able to join us here. Otherwise, we will have to figure out a way. I've asked him to download this on the phone, and so we're just having a little bit of a technical difficulty right now. So I'm waiting for him to get back. This is why a little bit of technical know-how is so important, I guess, in today's world. Okay, he's joined. Prakash ji, can you send me a request to join into the video? So again, I'm getting a notification that you're unable to join, and I really don't know why that is so. None of my guests have actually had a problem either from the laptop. So perhaps downloading this on a phone, although I don't see why this is not working. Let me see. Yeah, Prakash ji, you're unable to join for some reason. There may be a setting on your Instagram that doesn't allow you to join me over here. So perhaps you will need to download this on your phone, and I will come back and then we can try it from there. So let's see what the divine plan is. Oh, you can join in. Prakash ji, are you able to see? Yes, there you are. Oh, Yeah. this is good. Your camera is tilted, so I can see you sideways. If you can move the camera, Like yes, this? this is. So please stay there. I'm going to introduce you first. So Okay. first, introduce myself. I'm Radhika Chopra. Welcome to my IGTV. Uh, for those of you who've joined and can stay through the live chat, it would be great. I know it's afternoon siesta time, and many people are having a little nap. You can, however, in case you're not able to see this, catch us in this live chat, you may be able to see it on my YouTube channel called Radhika Chopra. You might have to search for my YouTube channel. As I said, Radhika Chopra sometimes shows the singer Radhika Chopra. So go into Radhika Chopra Healing, and then you'll be able to see all my guests and my wonderful guest today, Prakash S. I have never met you, Prakash ji, but I have seen a lot of your posts on Facebook. It really fascinated me, and so I reached out to you because Prakash ji is an author of a book called Unlocking Pending Karma and Its Correction. And I believe you are very well versed with different streams of astrology. You've done KP, Jamini, Vedic astrology, Lal Kitab, and Vastu, amongst many things. And you also mentioned to me that you have been researching pending karma for the last 5 to 6 years. So, and today's topic is about pending karma. So, welcome. Thank you. Thank you so much, Radhika ji, for having invited me on your channel. Thank you so much. I'm grateful. Such an honor. I welcome today. It's an honor for me. So I want to start with, jump into this one question that I had, which has intrigued me, that you've learned so many streams of astrology and researched so many streams of astrology, but why pending karma is what you particularly researched, and you wrote a book about it. So can you give us a little bit of information about that? Yeah, sure, Radhika ji.
So Uh, I started your my voice, your voice needs to be a little louder, Prakashji. It's a little bit softer for some reason. So okay, I'm not able to hear it very clearly. okay. I'll try and speak louder. Okay, Yeah. so I started my journey, Radhika ji, in 2007, so to speak, about astrology, and Hmm. gradually I ventured into different kind of branches of astrology, as in Prashna Kundli, KP, Lal Kitab, and so on and so forth, like Bhrigunindi Nadi, Sukh Nadi, and Saptarishi Nadi. So there are a lot of branches, and this that always intrigued me to learn what is this astrology is all about, because I think within few years of span of time it is difficult to learn everything. So I thought I need to get into the details of nuances of the karma, pending karma, and all these things. So one thing always intrigued me is a karma. मुझे कर्मा को लेके थोड़ा सा I always been into what is that pending karma, what is that how we can redeem from the curses and the boon. So that actually intrigued me, and that actually motivated me to write a book on pending karma, so where I define how someone can redeem himself or herself by reading some mythological stories. So where I have written in such a way that even if there is a curse, you can redeem yourself. So basically, to learn about pending karma, we all should understand what is karma. And Hmm. to understand karma, there are actually two ways. One is a spiritual perspective, and another one is a astrological perspective. And trust me, you cannot understand through astrology unless and until you will understand the spirituality, behind it. So Right. if you give me few minutes, I'll talk about the spiritual, the spiritual realm behind the pending karma. So if Sure. you say so, I would like to elaborate on that. Yes, I will. I would like you to talk about it, but I just want to say one thing. I'm very, very sorry. My phone was not lying in a proper way. The speaker was this thing, so you were audible. It's just that you were not audible to me. So, Okay. you are audible. So you don't have to stress your voice. I think Okay. everyone can hear you clearly. It was just my phone. Yes, please Okay. do elaborate on this. The spiritual understanding is really what you said is the spiritual understanding is very important for us to understand how to balance or redeem or whatever it is about karma. Is Yeah. that what you're saying? Yes. Okay. Yes. Yes. Yeah. I'll Please do. explain what is karma and how we can derive pending karma out of it. Hmm. So to understand karma, there are two types. So one is sanchit karma. So sanchit karma is your accumulated karma which you have gathered in past lives. It could be, the karma of 10 years, sorry, 10 lives, or it Hmm. could be accumulated karma of past 100 lives. Just give you one example. In Mahabharata, when Dhritarashtra, was asking this question to Lord Krishna, that I don't remember that I've done any sin in my 100 past lives. How come I can born a blind person, and even though I have had 100 children, and how can I be, in one day I don't have any children. So Lord Krishna told him that, in 101 life you actually killed one swan. So आपने एक पक्षी यानी एक swan था, you killed him, you poked one, some kind of object into her eyes, and you also killed all her kids. So that is the reason why you are actually reaping all these her curse actually coming into this life. So you are actually bearing all the how would I say, the hardship and or the problems. Hmm. So what we tend to say, that you have 100 kids because of your good deeds of past 100 lives, but in the 101 you did some sin, and that is the reason why you are actually bearing these all hardship and the problems. And out of sanchit karma, there is always a question of what is prarabdha then. So Right. prarabdha comes from sanchit karma, and I explain in a very layman term. Suppose you have a deposit of 1 lakh rupees in your bank, okay, and that is the accumulated
money which you have gathered in your past 100 lives. Okay. Mm-hmm. Now, when you take a born in this life as a human being, so what God will give, what is the good and what is the bad, and He will decide. Okay, you take a, you are born, but certain portion He will take out of it from the 100 lives, and then He'll give you in this account, and then you have to, take this prarabdha going forward, and that prarabdha is something you can work on it. You cannot work on sanchit karma, you can work on prarabdha. So prarabdha, I will explain which house is prarabdha in Kundali and which house is sanchit karma in Kundali. I will explain. And what is how you can redeem all these things. So basically, so to make it interesting, प्रारब्ध कर्मा कुछ नहीं है, आपका जितना भी संचित कर्मा में जितना आपने पूर्व पुण्य जितना भी पाप किया था ना, उसमें से कुछ पोर्शन आपको भगवान ने इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में दिया, और अब आपको ये लाइफ जीनी है उसी पूर्व पुण्य से, और जो हम लोगों से पाप होते हैं वो हम उसी को यहाँ पे हम बेयर करते हैं. तो अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूं तो कुंडली का 5वां घर जो होता है जिसको हम पूर्व पुण्य बोलते हैं, वो पास्ट लाइफ का गुड डीड्स और बैड डीड्स दोनों दिखाता है. वो दिस इज अ गुड डीड एंड अ बैड डीड्स ऑफ. थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, काफी मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं. आप मेरे टीचर की तरह सुन लिए, मुझे प्लीज करेक्ट करिए इफ आई एम रॉन्ग, कि 12 घर होते हैं, और उसमें से आप कह रहे हैं 8वां घर जो 8th हाउस जो डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का माना जाता है, जिसको दुष्स्थान भी बोला जाता है. लॉट ऑफ पीपल हियर दीज वर्ड्स, दे डोंट अंडरस्टैंड. सो द 8th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी या 8वां भाव जो होता है वो पूर्व पुण्य का होता है, आप कह रहे हो? नहीं, 5वां घर, 5th house. 5th house is yes, of course. 5th house is purva punya. Your 9th is your ancestry, correct? It's like correct. Yeah. तो आपका जो 5th house है, जो 5वां घर है, वो आपका संचित कर्मा है, और वहां से कुछ पोर्शन आपको जाएगा 9th हाउस में, वो आपका प्रारब्ध है. अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग. प्रारब्ध. हाँ, और प्रारब्ध में भी कैटेगरी. इस लाइफ का कोटा मतलब आप कह रहे हो पूरे जैसे एक वेयर हाउस में सामान होता है, लेकिन आप एक कोटा से निकलते हो, मतलब जस्ट यू गेट वन पोटली, दैट इज योर प्रारब्ध कर्मा. So your sanchit is the 5th house of astrology, you're saying, and the 9th house is the prarabdha, which is the quota for this life, correct? जी, correct. Absolutely right. मैं आपको इसमें अभी आगे क्रियामान कर्मा भी बताऊंगा और सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा. अब जैसे 9th हाउस प्रारब्ध कर्मा का है, तो हम लोगों को लगता है कि हमको ऐसी लाइफ जो मिली है, क्यों मिली है? इज देयर एनी वे वी कैन मेक इट बेटर? यस, वी कैन मेक इट बेटर. देयर आर टिप्स एंड ट्रिक्स. अब प्रारब्ध कर्मा भी 3 वैरायटी में होता है. एक होता है, one person is asking and I'm thinking she needs to be answered before we can go ahead, otherwise she will lose track of what we are saying. She's asking what is sanchit karma. Amrita, he just explained that sanchit karma is the karma which is the quota of this lifetime. Sanchit karma is the sum total of all your actions, everything that you have done across lifetime. And prarabdha is what you have come with in just this, the little package that you're going to work through in this lifetime. So that is prarabdha. Am I correct, Prakash ji, in my explanation? Okay. Correct. And to make it more, intuitive, I gave an example of Dhritarashtra of Mahabharata. So what he did, in past 100 lives, because of that he got 100 sons. But in 101 life, he did some bad sin. That is the reason why he was born blind. And he have lost all his sons. So Krishna reminded him that, in 101 life, you did some sin, and that is the reason why you are born blind and you don't have any son. So, sometimes we think, even in this life also, we feel we are doing everything good, and it is not because of us, we have done something bad, and we have a lot of questions around it. So trust me, we can answer anything. We can answer anything and everything through astrology and spirituality. Right. So, and now, as I was talking about 9th house हमारा प्रारब्ध है. अब प्रारब्ध अगर हम
मान लीजिए 9th हाउस जिसको हम लक का बोलते हैं, हमारे भाग्य का घर है, और हम बोलते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है तो हम कैसे अच्छा करें उसमें। अब ये देखिए, वो 3 वैरायटी होती है वहां पे। एक होता है फिक्स कर्मा, एक होता है नॉन फिक्स कर्मा, एक होता है दृढ़ अदृढ़ कर्मा, यानी मिक्स ऑफ फिक्स एंड नॉन फिक्स। तो जो फिक्स कर्मा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी फिक्स प्रारब्ध को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यू हैव योर पेरेंट्स, कैन यू चेंज देम? नो। सो something like that, we have fix. We can't change, we can't do any modification, we can't alter it. But yes, in Gita, Lord Krishna has given us 30 to 40% liberty. Yes, there are some opportunity which you can redeem, like जो नॉन फिक्स कर्मा है आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आसान करता हूं इसको, मैं थोड़ा आसान करता हूं। कुंडली में जो भी प्लैनेट फिक्स राशि में होंगे, आप उनके रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे कि वृषभ राशि में जो होंगे, टॉरस साइन में, हाँ, फिक्स साइन में जो होंगे, यानी कि 2, 5, 8 एंड 11, यानी कि वृषभ राशि, लियो राशि, स्कॉर्पियन राशि एंड एक्वेरियस राशि, ये फिक्स साइन को दिखाते हैं। तो इससे जो कर्मा एसोसिएटेड होंगे वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बट व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन फिक्स कर्मा, जिसमें कि चर राशि आती है, मूवेबल साइन आते हैं, जैसे कि एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा। सो वॉट एवर प्लैनेट्स आर देयर in those houses, you have the liberty to change it. And there are mutable signs also, like 3, 6, 9, 12, Gemini, Mithun and Sagittarius and Pisces. So there are also some chances you can make some changes by doing some remedies. Right. तो रेमेडीज से हम, इस बात से तो हमको खुशी होगी कि हम व्हाट वी कैन चेंज, जो चर राशि में प्लैनेट हैं उनके रिजल्ट को हम चेंज कर सकते हैं, और जो मूवेबल में है उनको कर सकते हैं। बट हम फिक्स राशि में जो प्लैनेट है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर। वो हम चेंज नहीं कर सकते। सारा कुछ फिर हमारे हाथ में होगा तो फिर ऐसा भी नहीं चलेगा ना, भगवान ने हमको एज अ पपेट रखा हुआ है तो हम नहीं कर पाएंगे। हम कई चीजों के कॉन्सिक्वेंसेज वी आर नॉट एबल, वी हैव टू इंड्योर। सो लाइफ इज ऑल अबाउट, one is being able to bring change and one is to endure what you have to endure. So it's a combination of both things, correct? जी जी, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी सारा कवर अप कर लूं। अब जैसे इसमें भी आप बोलेंगे कि फ्री विल और क्रियामान कर्मा क्या है, करेक्ट? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कुंडली में जो तीसरा घर होता है और छठा और 10वां और 11वां होता है, ये हमारे फ्री विल हाउसेज होते हैं, और यहां पर हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। बट एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने बोला था द फिक्स्ड कर्मा इज सेकंड हाउस, दैट इज योर टॉरस, राइट? टॉरस, एंड देन यू सेड लियो, यस, लियो, एक्वेरियस, करेक्ट? एंड स्कॉर्पियन साइन एंड एक्वेरियस, राइट, एंड एक्वेरियस। सो वो एक्वेरियस तो काल पुरुष की 11th हाउस हो गया नेचुरल, बट यू आर सेइंग कि हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इज दिस दृढ़ अदृढ़? नो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, इसलिए किसी की भी पूरी नहीं होती है। पूछो क्यों? क्योंकि जो 3rd हाउस है और जो 6th हाउस और 10th 11th, मैं इसका आपको एक कॉम्बिनेशन समझाता हूँ। 3rd हाउस हमारा पराक्रम का घर होता है। हम पराक्रम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम रेमेडी ही नहीं करना चाहते। हमको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, मतलब आज करें कल कुछ मिल जाए, वो पेशेंस भी नहीं है। 3rd हाउस पराक्रम का, 3rd हाउस हमारा हमारा इच्छा करने का होता है कि अच्छा ये काम हम कर ले तो हमारी इच्छा पूर्ति 11वें घर में हो जाए। हम 10वें घर से इच्छा करते हैं और वो इच्छा पूर्ति 11वें घर में होती है जी। आप समझ रहे हैं? तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हम सबसे ज्यादा गलती 3rd हाउस में करते हैं, इसलिए हमारी इच्छा पूर्ति 11वें घर में नहीं होती है, तभी तो वो फिक्स साइन है। आप कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज माई विल टू चेंज एनीथिंग, ओके, वेदर मैं वो कॉन्शियस एफर्ट से करूं या मैं रेमेडीज, अगर मैं आपके पास आती हूँ और कंसल्ट करती हूँ, आप मुझे बोलते हैं कि ये रेमेडीज आपको हेल्प करेंगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। सम पीपल
झट से रेमेडीज करते हैं कि हाँ ये करना है, ये मुझे अपना थिंकिंग चेंज करना है, ये बिहेवियर चेंज करना है, और ये रिचुअल या रेमेडी मुझे करना है बिकॉज इसका भी इम्पोर्टेंस है. सो सम पीपल गेट टू इट वेरी फास्ट एंड सम पीपल आर नहीं नहीं रेमेडी नहीं काम करता या छोड़ो. और कई लोग अगेंस्ट रेमेडीज होते हैं, अगेंस्ट कि मैं बदल ही नहीं सकता या ये मैं कर ही नहीं सकता, ये जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तो गलत ही कर ऐसे मतलब निगेटिंग होता है. तो आप कह रहे जी हैं जी कि वो दैट इज अ थर्ड हाउस इफेक्ट कि कैसे अ पर्सन अप्रोचेस प्रॉब्लम्स. जी, पर आप वही हुआ ना, करेक्ट करेक्ट द करेक्ट अप्रोचिंग लाइफ चैलेंजेस और व्हाट यू डू अबाउट योर लाइफ चैलेंज. करेक्ट. देखो, उपचय हाउस जितने भी होते हैं ना, ये हाँ. सब फ्री विल हाउसेज होते हैं. 3, 6, 10 एंड 11 सबसे ज्यादा गलतियां हम चारों घरों में ही करते हैं. अच्छा. क्योंकि विश करते हैं थर्ड हाउस से, ठीक है, करेक्ट. और उसका 9वां घर होता है 11वां घर, जो कि उसके लिए लक होता है. थर्ड जी. हाउस के लिए, उसका या. लिए वो लक होता है. और आप देखिए कि थर्ड हाउस के जस्ट ऑपोजिट जो घर होता है वो भाग्य का ही घर होता है. तो जी. भाग्य को सहारा चाहिए होता है थर्ड हाउस का. आपने आप अगर देखें, फर्स्ट हाउस कौन है? शिव है. शिव को शक्ति चाहिए. शक्ति कहाँ है? 7वें घर में है. जी. थर्ड हाउस अपने से डायरेक्टली ऑपोजिट घर की उसको हेल्प चाहिए होती है. अगर जी. पहले घर को 7वें घर से मदद नहीं मिलेगी, इसलिए तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी. करेक्ट. अगर हम्म. 9वें घर को, भाग्य के घर को, जिसको हम प्रारब्ध कह रहे हैं, थर्ड घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो भाग्य भी नहीं बन किसी का इन्वोक होगा. एम आई जी. राइट? करेक्ट. करेक्ट है ना. अब आप थर्ड से काउंट करिए 11वें घर तक पहुंचने के लिए, तब भी आपको 9 बार चलना पड़ता है. हम्म. तो यानी करेक्ट. थर्ड हाउस अगर किसी का, अगर कोई अपना पराक्रम से अच्छा कर लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ शियर ग्रिट एंड विल पावर, सो द विश कैन बी मटीरियलाइज एंड कैन बी फुलफिल इन द 11th हाउस. Right. It can give you मगर benefits. Yeah. यस, करेक्ट. अभी हम, अगर मैं छोटा सा अगर शिफ्ट करके हम छठे घर पे जाएं, तो छठा घर आपको पता है, मतलब काम क्रोध लोभ माया का है. तो हम सबको ही वो हम उसी पे, हम हमारी सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. तो हम सबसे छठे घर को अच्छे से यूज भी नहीं करते. मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि अगर हम छठे घर को अच्छे से यूज कर लें, तो हम डेली जो अपने संचित कर्म में बैड डीड्स करके जो ऐड कर रहे हैं ना, वो भी नहीं होगा. क्योंकि हम एवरी डे वी कलेक्ट समथिंग एंड वी पुट दैट इनटू संचित कर्मा. तो छठा Hmm. घर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि छठा घर मतलब संयम का होता है, हमारी इंद्रियों का होता है. तो छठे घर पे हमें संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो छठा घर भी खराब होगा हमारा. करेक्ट. तो इसलिए क्या होता है कि हमारा जो फ्री विल है या हमारा क्रियामान कर्म है, वो भी हमारा राइट, बोले तो मतलब चैलेंज, मतलब उतना सही डायरेक्शन में वो नहीं है. हमको लालच बहुत है ना, लालच में हम बहुत गंदे गंदे गलत काम भी कर लेते हैं. आप Hmm. समझ रहे हैं ना, छठा घर लालच का भी है ना. तो हम लालच में हम किसी को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं. तो छठा घर भी हम कैसे खराब कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं. अब 10वां घर हमारे कर्म का है. तो कर्म में Hmm. जहां हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम वहां पर भी उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं, और वो भी 10वां घर खराब करते हैं. और फिर ऑफकोर्स 11वां खराब करते हैं. तो अगर हम 3, 6, 10, 11 को अच्छा कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि हम जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं. ये मुझे पूरा विश्वास है. अभी हम दुष्टान हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि 8वां और 12वें की, वो तो है ही सर्वोपरि पीड़ा के हाउसेस, उसकी हम Hmm. बात नहीं कर रहे हैं. मगर आप 3, 6, 10, 11 को कंट्रोल कर लीजिए, 8 और 11 अपने आप अच्छे हो जाएंगे, ये गारंटी है. छठे घर के बारे में बिकॉज दिस इज वेरी इंट्रीगिंग द सिक्स्थ हाउस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट. आई फील आई डोंट हियर इनफ अबाउट इट. ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते. ज्यादातर लोग 8वें एंड 12वें का करते हैं इन अ नेगेटिव जी कॉन्टेंशन. सो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो डेली सर्विस, रोज की ऑब्स्टिकल्स, रोज के हाउ यू सर्व एंड हाउ यू behave with those who serve you. Is it, am I correct? You can also say जी जी, that. It's also राइट. your enemies within you and without you, means bahar and andar. Enemies जी are a जी so we have internal enemies. So we have so many of the the krodh, kam, lobh, all these things are there. जी. So can you elaborate a little bit, because the sixth house मेरे को बड़ा intrigue करता है. एंड एक्चुअली हमारी चेंजेस एवरीडे लाइफ में आते हैं. सिक्स्थ हाउस इजंट इट मोर एवरीडे लाइफ, जी, डेली अगर लाइफ? आपको जी अगर आपको 6th हाउस को समझना है, तो आप 6th हाउस का, आप ये देखिए 6th हाउस का पदा कहां पे है.
यानी उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे है। यानी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम मिरर इमेज की बात करते हैं ना, अरुण लगन, फला ऑफ द लगन। तो यस 6th हाउस मिरर इमेज देखिए आप कहाँ पे है कुंडली में, आपको वहां से बहुत कुछ क्लू मिल जाएगा रिगार्डिंग पेंडिंग करना। क्योंकि आप ये देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जो चर राशि होती है, जहां पे वो प्लैनेट बैठे हैं चर राशि में, मान लीजिए आपके छठे घर में कोई चर राशि है और वहां पे कुछ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ये गारंटी है आप अगर उस छठे हाउस पे उस प्लैनेट उस साइन पे काम करेंगे तो आप उससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ये गारंटी है इस बात की, आप उससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको दिया है ना नॉन फिक्स कर्म। आप उसको एक्सरसाइज करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। इट इज बाउंड टू गिव यू गुड रिजल्ट। ट्रू। तो छठे घर को समझने के लिए आप वहां देखो कि वहां पे राशि कौन सी है और प्लैनेट कौन सा है। अगर चर राशि है तो इसका मतलब आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने शत्रुओं पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, विद इन भी और आउटसाइड भी। करेक्ट। और जो प्लैनेट है उस प्लैनेट को आप एसोसिएट कर लीजिए, मान लीजिए वहां पे वीनस है, ठीक है, तो आप अपने स्पाउस को सर्व करें। तो आप समझ रहे हैं, यू नो व्हाट आई इंटेंड टू से, कि अगर वहां पे स्पाउस का कारक यानी वीनस है, तो आप वीनस को अच्छे करने के लिए कोई भी अपने स्पाउस से रिलेशन अच्छा करता है तो हमारा 6th हाउस भी अच्छा होगा, राइट? करेक्ट। पर करेक्ट। एंड से अगर जुपिटर है तो बच्चों के साथ या एल्डर्स के साथ, या जुपिटर के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं लाइक गुरु, टीचर्स। करेक्ट, एम आई राइट? एक ट्रिक और बताता हूं। मान लीजिए 6th हाउस में आपकी कोई जल राशि है, जैसे कि मान लीजिए पाइसिस साइन है, क्योंकि वो दृढ़ अदृढ़ कर्मा में आता है कैटेगरी में, और वहां पे प्लैनेट है केतु या राहु। तो आप किसी को भी रेमेडी दे सकते हैं कि वो बाहर जाए और कहीं अगर उसको फिश पॉन्ड दिखता है तो वहां पे आप उनको खाने के लिए कुछ डाल सकते हैं। तो आप 6th हाउस में कैसे अच्छा कर रहे हैं, आपको पता चला ना कि 6th हाउस में चर राशि है या डुअल राशि है। करेक्ट, म्यूटेबल साइन पाइसिस राशि है, तो मैं ठीक कर सकती हूँ उसको। तो आप केतु क्या है, केतु फिश है, मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, तो आप उनको अच्छा कर सकते हैं ना छठे घर को। ऐसे ही आप रेमेडी दे सकते हैं, किस हाउस में कौन सा प्लेनेट है, कौन सी राशि है, तो आप उस तरीके से आप रेमेडी दे दीजिए और वो काम करेगा। एज लॉन्ग एज द अदर पर्सन हैज फेथ विद इन हिम कि यस आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। सो बिकॉज केतु है 6th हाउस में, तो पेशेंस नहीं देगा वो उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। क्योंकि केतु क्या होता है, he actually expect you to be a patient person, but sometimes we tend to lose our patience. So हर प्लैनेट को बैठाइए और वहां पे आप समझ जाएंगे कि वो प्लैनेट क्या बोल रहा है उस राशि में। तो छठे घर को समझने के लिए मिरर इमेज देखो, उसकी कौन सा प्लैनेट है वहां पे, उसकी राशि देखो, छठा घर अपने आप अच्छा हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे इस बात को लेके, एक्चुअली दो है। सो लेट मी जस्ट गो बैक टू माय हेड वेयर आई हैड द क्वेश्चन। जैसे आप बोल रहे थे, दो चीजें हैं। एक तो आपने बोला फॉर एग्जाम्पल, आपने जो एग्जाम्पल दिया पाइसीज, अगर आपका 6th हाउस पाइसीज है विद केतु, सो यू सेड द रेमेडी ऑफ गिविंग फूड टू फिश बिकॉज that would be a remedy. Now I want to understand two things. That people, ये लाल किताब की रेमेडी है, ये मेरा क्वेश्चन है, करेक्ट? नहीं, No, this is just a remedy. लाल किताब, नो This is just a remedy. I want to understand, अगर मैं ऐसा करूं, okay, obviously वो that act itself will be beneficial. एक तो मैं, अगर हम लॉजिकल, आज की दुनिया में जो सबको लॉजिक चाहिए और सब लोग इस चीज को बड़े लुक डाउन करते हैं, जितना एजुकेटेड होते हैं उसको इन चीजों पे बड़ा कि ये तो अंधविश्वास है। कई लोग ऐसे माइंडसेट के होते हैं तो नहीं करते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि हाउ डू आई, इफ आई हैव पाइसीज एंड केतु देयर, हाउ डू आई चेंज माई वे ऑफ एवरीडे लाइफ? मैं ये रेमेडी कर लूंगी, लेकिन वो मुझे कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है। What is it that it's trying to say? What is it trying to balance? What do I need to understand about it as a spiritual or a mental or a emotional understanding? Yes. First of all, it's a Pisces राशि, okay? जलीय राशि है, यानी जल तत्व को हमें समझना पड़ेगा। पंच तत्व होते हैं, करेक्ट? तो यानी जल तत्व को समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी 70 to 80% इज मेड अप ऑफ वाटर, करेक्ट? राइट? तो हमें जल तत्व को समझना पड़ेगा। अब मैं एक एक करके एक पॉइंट बताता हूं। मान लीजिए आपको पता है कि वहां मेरी पाइसेस राशि है, ठीक है, या पे आपकी कैंसर साइन भी ले सकते हैं, ठीक है, कैंसर साइन ले लीजिए। तो मैं अपने क्लाइंट को बोलूंगा कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं
तो आप नॉन वेज में फिश खाना छोड़ दीजिए, और स्पेशली उसके साथ कोई भी डेयरी मिल्क प्रोडक्ट को आप कंबाइन मत करिए, बिकॉज इट विल इन्वोक द कर्स ऑफ Ketu, or it will invoke the curse of Matsya avatar of Lord Vishnu. So I will suggest that if it is under your purview, if it can be, controlled, please do not take, fish, and especially do not club with any milk or dairy product item, because it will invoke certain curse. And one of the curse is vitiligo problem in medical astrology. Right. Have you there is a problem, vitiligo. So yes. this will invoke that curse. And interesting. अब वहां पे हमने देख लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा लाल किताब बताता हूँ। छठा घर पाताल का घर होता है, राइट? अच्छा। पाताल, हाँ, छठा घर पाताल का होता है, जहां पे पाताल के घर में राजा बलि रहते हैं, जो भगवान वामन अवतार विष्णु जी ने, जिन्होंने उनको एक मतलब ब्लेसिंग दिया था कि आप अमर रहेंगे। तो अब पाताल में कौन रहता है? पाताल में आपको पता है कि चींटियां रहती हैं, बिच्छू रहते हैं, सांप रहते हैं। तो डेली अगर कोई बाहर निकल के फिश पॉन्ड तक नहीं जा सकता, तो वो अगर कहीं जहां पे चींटियां रहती हैं उनको कुछ खाने को डाल देगा, तो वो पाताल में चला जाएगा वो खाना, करेक्ट? दूसरी बात, मुझे कोई रेमेडी देनी है लाल किताब की, और मुझे कोई बोलता है कि मेरी जॉब बार बार छूट रही है, मेरी जॉब में मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले उसके छठे घर को समझूंगा, व्हाट इज द साइन ओवर देयर, व्हाट इज द प्लैनेट। तो मैं उसको बोलूंगा एक काम करो, आप डेली हो सके तो आप चींटियों को कुछ खाना डालिए, पाताल में वो खाना जाएगा, ठीक है? तो उससे छठा घर आपका अच्छा होगा। जैसे जैसे वो खाना वहां जाएगा, आपकी जॉब सेटल होने लगेगी। इसमें और लाल किताब में और भी रेमेडीज हैं, जिसमें बोलते हैं कि आप इफ पॉसिबल एटलीस्ट टेक अ डिप इन होली वाटर, बट आई नो लुकिंग एट द करंट सिनेरियो इट इज नॉट पॉसिबल, बट nonetheless if it is possible, why not exercise this option also, go to Ganges river and take a dip. So because वहां पे क्या होता है, लाल किताब बोलती है कि जितना आप पवित्र नदी में किसी में स्नान करते हैं, तो आपकी जॉब में सेटलमेंट, यानी कि आप you tend to get settled down in your job or in your profession. So sixth house में लाल किताब का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है rather than वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और लाल किताब की रेमेडी सिक्स्थ हाउस की बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने बताया है कि मतलब बहुत ज्यादा है। I mean we can have a separate discussion, otherwise इसमें बहुत ज्यादा बताते हैं कि सिक्स्थ हाउस में आप कोई अगर वेल हो तो वेल में जाके आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, और मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सुना हुआ है, बिकॉज आई नो 12वें हाउस को छत बोलते हैं, तो फिर लाल किताब में उसकी भी रेमेडीज होती हैं अगर वहां पे to pacify planets. I am a little confused right now because मुझे लगा था कि जो पाताल होता है वो 8वां घर होता है, वो अलग एस्ट्रोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग है, is or have I understood it wrong? I'm just wondering कि 8वां घर भी जी 8वां घर शमशान का होता है, जो शनि का घर है। वो शमशान का घर है क्योंकि वो इसलिए शमशान का है, वहां पे कालपुरुष कुंडली की जो वृश्चिक राशि आती है वो एक्चुअली मंगल की अग्नि दिखाता है, यानी चिता की अग्नि दिखाता है वो जी। और जो शनि है वहां का कारक है, तो वहां का वो जल्लाद बोला जाता है लाल किताब में जी। वो आपको मतलब एक्चुअली ही पनिशेस यू, तो आपको पनिशमेंट देते हैं वो, क्योंकि भाग्य से 12वां घर है ना, तो अगर कुछ मतलब कुछ भी गलती करोगे तो देर इज नो रूम फॉर इट, वो तुरंत। और शनिदेव के जो एक्चुअली उनके बॉडीगार्ड हैं जो उनकी सुनते हैं वो हैं राहु और केतु, तो वो राहु को ऑर्डर देते हैं कि जाइए इनको पनिश करो और इनको ऐसे ऐसे आपको सजा देनी है। तो एक इंटरेस्टिंग मैं आपको रेमेडी बताता हूँ जो लाल किताब की नहीं है, डेफिनेटली कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, कहीं से सुनने को भी नहीं मिलेगा। अगर 8th हाउस किसी का खराब हो बहुत और उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो लोग वीडियो सुन रहे हैं और जो इसको करें भी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट फिर भी जस्ट टू गिव योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ ये चिता का मतलब है और कोयला हो गया, जो चिता है मतलब कोयला जो जल रहा है वो क्या है, इट्स शनि। तो मैंने अपने क्लाइंट को बोला था, वो उड़ीसा के थे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने बोला उड़ीसा में ऐसा कुछ रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे देवी का मंदिर होता है और वहां पे लोग जो जलते आग कोयले पे चलते हैं, समझ रहे हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए या कोई और मन्नत के लिए, मगर उनका पैर में जलते नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 8th हाउस को उससे आप एनोलॉजी दे सकते हैं। आई मीन इट्स द बेस्ट वे टू कंपेयर, क्योंकि आप मृत्यु तुल्य कष्ट खुद ले रहे हैं ना, चल के नंगे पैर, और नंगे पैर ले रहे हैं यानी पैरों में जो कष्ट ले रहे हैं, यानी
उस कुंडली में हो सकता है पाइसिस साइन भी अफ्लिक्टेड हो, और पाइसिस साइन का जो कारक है केतु भी अफ्लिक्टेड हो। तो जब आप नंगे पैर चलते हैं तो पाइसिस साइन भी अच्छा होता है, 8वां घर भी अच्छा होता है, मंगल भी अच्छा होता है, शनि भी अच्छा होता है। दैट्स हाउ यू नो टू गिव अ रेमेडी यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव कि वो कैसे उसको हेल्प करेगा। तो अगर क्लाइंट पूछ सकता है कि मतलब वो क्या करता है, जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि व्हेन यू, जो आप मेरे को रेमेडी बोल रहे हैं, जो ये रेमेडी बोल रहे हैं, उससे इफ यू लुक एट इट फ्रॉम प्रैक्टिकल डेली लाइफ यू सी कि यू आर बीइंग टोल्ड टू इंड्योर सम हार्डशिप, यस, करेक्ट? एब्सोल्युटली राइट। I find that very fascinating because आजकल के जमाने में people are only in the pursuit of entertainment and seeking pleasure, and we do not want any hardship, and we have no tolerance for any hardship of any kind. In fact, इंटरनेट भी खराब हो जाए या बिजली चले जाए या पानी चले जाए तो मतलब बवाल खड़ा कर देते हैं सब, मतलब इतने अपसेट हो जाते हैं, इतने वर्कड अप हो जाते हैं हम सब। तो हमें हार्डशिप सहने की थोड़ी भी क्षमता नहीं है, एंड ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है बिकॉज यू नो दिस बिल्ड्स अप, ये बिल्डअप करता है, एंड आपको किसी ना किसी टाइम इन टाइम हार्डशिप एंड्योर करनी पड़ेगी टू बिल्ड दैट मसल, बिकॉज योर इंटायर लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम इज योर ग्रोथ, योर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एम आई राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। अब जैसे 9th हाउस जिसको हम प्रारब्ध का बोलते हैं, मान लो पाइसेस राशि वहां है, तो पाइसेस राशि क्या है, मतलब पैर, हमारे फीट, यू नो बिलो द एंकल एरिया। तो आप किसी को भी रेमेडी ये दे सकते हैं कि आप नंगे पैर रोज ना मंदिर जाइए, यानी जब जब पैरों में कंकड़ पत्थर चुभेंगे, जब वहां से थोड़ा ब्लड निकलेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो क्या होगा कि एक्चुअली यू आर इनवाइटिंग यू नो हार्डशिप्स, ट्रबल, यू नो एग्नी, यू नो with your own intent, with your own will, मतलब हैप्पीली आप उसको इनवाइट कर रहे हो। व्हाई? द रीजन इज बिकॉज भगवान को तो प्रॉब्लम देना ही है ना, वो आगे चल के अपने यू नो एंगल से देंगे। आप व्हाई नॉट यू इनवाइट प्रॉब्लम इन योर ओन वे। तो आप 9th हाउस में मंदिर जाने को क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 9th हाउस मंदिर का ही होता है जी, और वहां पाइसिस साइन है, तो आप नंगे पैर जाइए, करेक्ट। और जो वहां पे जो प्रकाश जी, बहुत लोग मैंने सुना है कि ये करते भी हैं। आई मीन जैसे आप शिरडी भी जाते हैं कई लोग, या कोई टेम्पल जाते हैं, सिद्धि विनायक जाते हैं, कई लोगों ने ये किया हुआ है कि, और बहुत लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग, अभी आपने मुझे बताया तो मुझे समझ आया क्यों, व्हाट एक्चुअली, शायद वो जब कर भी रहे हैं उनको आइडिया नहीं है कि वो किस चीज की रेमेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। एंड ब्यूटी ये है कि हमारे डेली लाइफ में जो आजकल हम रेमेडीज बोलते हैं, वो पहले तो डेली लाइफ होती थी। लाइक मेरी फ्रेंड कहती है उनकी ग्रैंड मदर रोज, उनकी हैबिट थी, और मेरी नानी भी करती थी, गाय आती थी, पहले तो गाय आ सकती थी, चलती थी, तो उसको रोटी खिलाते थे। हमेशा गाय आती थी, आवाज करती थी, उसको पता था कि यहाँ रोटी मिलेगी। चींटी को खाना खिलाते थे, थोड़ा सा आटा डाल के, शक्कर डाल के देते थे, और लोग इतना सोचते नहीं थे कि इसका क्या मतलब है, लोग क्या, ये नेचुरल प्रोसेस था जो लेडी ऑफ द हाउस वुड डू, जो हम लोग भूलते जा रहे हैं, यू नो। एंड तब में करते थे लोग ये रेमेडीज, कितनी रेमेडीज करते थे ऐसे। सही बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और अब किसी भी घर में कोई भी राशि बैठा लो, उसमें प्लैनेट, और आप अपने आप से एक बहुत अच्छी रेमेडी दे सकते हैं, और कुछ भी आप रेमेडी बना सकते हैं। तो आप बताइए 12th हाउस का, आप 9th हाउस का पूछ रहे हैं या 12th हाउस का पूछ रहे हैं? Is there a question from anyone? I could ask a question. That's I was wondering. I don't know whether somebody's asked a question. Anybody wants to know? It depends on whether they have their chart, sir. कि प्रकाश जी अगर उनके पास उनका चार्ट नहीं है तो वो नहीं पूछ पाएंगे। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने कल ही एक चार्ट देखा था, मैं 12th हाउस की बात कर सकती हूँ, आपसे पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी कर सकते हैं। तो उनका है टॉरस इन 12th हाउस विथ मार्स देयर। ओके, जेमिनी राइजिंग है, हाँ जेमिनी साइन। तो 12th हाउस में मार्स, मंगल होना, और वो भी टॉरस में, तो आप इसके लिए बताएंगे क्या इसका मतलब क्या है और उसकी रेमेडी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैंने बोला कि जो फिक्स साइन होते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू ऑल्टर देयर सिग्निफिकेशंस, देयर रिजल्ट इज डिफिकल्ट, बिकॉज टॉरस साइन है ना, इट्स अ फिक्स साइन।
एंड दैट टू इन द हाउस ऑफ पास्ट लाइफ। मतलब बंदे ने पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा। कैसे किया होगा? जो मंगल होता है वो भाई का कारक होता है, प्रॉपर्टी का कारक होता है। ओके जी जो टॉरस साइन है वो वेल्थ का होता है, मनी का होता है। तो जी व्हाट समवन हैज might have done it in past life, maybe let's not take it literally on the face value, please. या I'm just putting it on a generic way and no one feel offensive about it. तो किसी ने हो सकता है कि अपने भाई को चीट किया हो प्रॉपर्टी मैटर में, क्योंकि पास्ट लाइफ वाले हाउस में है ना। जी करेक्ट। बिल्कुल वेल्थ में कहीं चीट किया हो। करेक्ट। अगर यहाँ पे जेमिनी साइन होता तो हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चीटिंग करवाया होता। राइट। अगर वहां पे कोई फायरी साइन होता तो हो सकता है कि किसी ने किसी की प्रॉपर्टी जला दी होती, किसी की फसलें जला दी होती, पास्ट लाइफ में। तो आप उससे आप कर्मा निकाल सकते हैं और रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ गॉड। So you understand what I'm trying to tell? We can give a remedy. It will work or not. Definitely, we cannot give guarantee. There is nothing called, कि प्रॉपर रिडीमिंग हम कोशिश ही कर रहे हैं क्लाइंट को बताने की। अगर फिक्स साइन है तो बहुत ही मुश्किल है, बट म्यूटेबल यानी ड्यूअल साइन है और चर राशि है यानी कि मूवेबल साइन है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रिडीम दैट sin. There is a possibility. I get that, Prakash ji. I get that because it's a Taurus sign, it is a fixed sign, and it is hence very difficult to change that. But I am just wondering, अगर ये इंसान, देखो हमारी लाइफ जो अभी है वो हमारे हाथ में, इन द सेंस कि हम अभी मोमेंट टू मोमेंट कॉन्शियसली अपनी लाइफ जी सकते हैं, करेक्ट? सो इट डजेंट मैटर कि उसका रेमेडी होगा या नहीं होगा, मे बी फॉरगेट बीइंग अटैच्ड टू द आउटकम ऑफ इट। बट आपने जैसे बोला, जैसे मंगल और मार्स इज द कारक ऑफ younger brother, right? Brother, property, so bhumi, because mangal is bhumi putra also. So maybe taking care of something of the earth, watering a tree, a plant, or doing something, or not wasting or not hurting the earth. I'm just thinking, I'm logically, right? And or doing something beautiful, even growing something on the plant, because on the earth, because beautifying the earth by growing something. I think it's a prayer or ode to Bhudevi, the offspring of Bhudevi, so to speak, like how we see it. And it doesn't matter whether it is, I'm just thinking in daily living, how do we live as consciously as possible? और जो चीजें हम बदल नहीं सकते वो नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा, अगर मुझे इंफॉर्मेशन है, ये मेरा सोचना है कि अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एटलीस्ट मैं कॉन्शियसली, धार्मिकली, राइटली, जैसे भी वर्ड्स आपको यूज करने, वो तो कर सकती हूँ मैं। Isn't it? करेक्ट। आपने जैसे वर्ड यूज किया भूमि पुत्र और वृक्ष लगाने की बात करी, क्योंकि मंगल जो रिप्रेजेंट करता है नीम के पेड़ को भी, बरगद को भी वो करता है, तो आप वो लगा सकते हैं। आप वो लगा सकते हैं, तो प्रॉपर मंगल की रेमेडी होगी वो, तो आप वो आप लगा सकते हैं। यू कैन डू प्लांटेशन डेफिनेटली। तो आप मंगल की रेमेडी कर सकते हैं प्लांटेशन करके। Satisfying to do something for the earth, Definitely. Yes. for the planet and honor it. Yeah. Yes. अर्धी साइन अच्छे होंगे। और मंगल जो रिप्रेजेंट करता है, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, कार्तिकेय जी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई इंसान भगवान हनुमान जी और कार्तिकेय जी के मंदिर में जाकर भी ये प्लांटेशन कर सकता है, यानी कि नीम का पेड़ लगाना, बरगद का पेड़ लगाना। तो स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलरली उस जगह भी जाके वो कर सकता है। अगर मान लीजिए वहां पे सेजिटेरियस साइन है तो और भी अच्छी बात है, फिर तो मंदिर में जाके वहां पे वो प्लांटेशन करे तो और भी अच्छी बात है। और वैसे लाल किताब में 12वें घर के मंगल को बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि 12वें घर में मंगल को बोला जाता है कि हाथी पे जो महावत होता है वो संज्ञा दी जाती है। ये एनोलॉजी दी जाती है कि अगर मंगल 12वें घर में है तो राहु कहीं पर भी बैठा हो वो परेशान नहीं करेगा, बिकॉज महावत है ना हाथी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो 12वें मंगल को बहुत अच्छा माना जाता है, उसको वो बुरा नहीं मानते कभी भी। लाल किताब में कभी भी बुरा नहीं मानते वो। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मगर क्योंकि हम पेंडिंग कर्मा पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने प्रश्न कुंडली लगाई किसी की, हमें 12वें घर में मंगल दिखाई दिया, ठीक है, तब हम वी कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चंस और हम उस हिसाब से उसको रेमेडी दे सकते हैं। क्योंकि प्रश्न कुंडली में हम क्रियामान कर्म देखते हैं। क्रियामान कर्म की बात करेंगे प्लीज, थोड़ा 2 मिनट, कि क्या होता है क्रियामान कर्म।
जी, That is a क्रियामान day. कर्म। हाँ, जी, sorry. क्रियामान कर्मा ही करके हम अपने पेंडिंग कर्मा का जो अकाउंट है उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो क्रियामान कर्मा से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो 3 वैरायटी थी प्रारब्ध में, उसमें हम जो 2 वैरायटी बचती हैं, नॉन फिक्स कर्मा और अदृढ़ और दृढ़ कर्मा के अकाउंट को हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं क्रियामान कर्मा से। तो अगर आप क्रियामान कर्मा यानी अपने फ्री विल को एक्सरसाइज करें तो आप रिडीम कर सकते हैं अपने आप को। और क्रियामान कर्मा को हम जनरली इसलिए बोला जाता है कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने लिए प्रश्न कुंडली लगवाएंगे तो आपको उसमें अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। क्योंकि अगर कोई कहता है जातक कि मुझे रेमेडी पे भरोसा नहीं है, कोई कहता है whether they are working behind the scene or not, I mean who would give the surety about it? So of Right. course no one would give, but there is a trick. You can cast a prashna kundli, you can Yes. cast a prashna kundli, and you can see whether the person who is doing a remedy or certain kind of a good things, whether you see a positive result in the prashna chart or not. So the prashna kundli is basically I would say a report card of 1 year or report card of last 6 months. I see. I see. Oh, there's can you hear me, Prakashji? Because there seems to be a internet issue. I don't know how many people can see him or hear him. Prakashji, I lost you. I think there was an internet glitch. So there was a moment of I could not hear you. Okay. So, okay. What was the point? What was the point where you missed my statement? What was the point where you missed me? So somebody's asked a question. Hold on. आपके ही कोई contact में है? उन्होंने कहा, प्रकाश जी, I don't understand astrology well. Please, could you explain how to leave karmic relationships? You know, the compulsions. I'm assuming they are asking about compulsions and troubling relationships which are there. So that's the question. Okay. Okay. So, I mean, how would I say? Okay. It's a difficult question. Basically, it's a difficult question because you know why? Because you do not have control on other person. You are giving your best, but your spouse is not giving you in the same, on the same wavelength, or he's not reciprocating in the same way which you want him to, reciprocate. It's a difficult one, no doubt about it. It's a difficult question, but I find the question difficult. I find the question a little difficult from the perspective that when somebody asks how to leave karmic relationships, can you actually leave karmic relationships, or you have to fulfill your karmic relationships? That's my question. Isn't a karmic relationship something that you need to fulfill and complete rather than abandon? My question to you. Okay. Oh my goodness. So you actually build on that question. Okay. So again, it's a difficult question, no doubt about it. It's a difficult question. Why? Because see, in this case, particularly in these cases, on these scenario, you don't have control on other person. Even if you do remedies, trust me, there is. I mean, forget about Charirashi, movable, mutable sign. But trust me, you can do remedies, but you don't have control on other person. And that's the reason why when we do matchmaking and some person has some afflicted 7th house or 7th lord, if they are a malefic planet in 7th house, so it is said that for a matchmaking, go for a person who doesn't have 7th house affliction or 7th lord affliction, or there are no papi planets in 7th house. तो जब हम मैचमेकिंग करते हैं तो जनरली क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आपका 7th हाउस थोड़ा खराब है, 7th हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, तो आप जब मैच मेकिंग करें तो थोड़ा सा अच्छे से करवाएं, जस्ट उसमें 8 गुण और मिलान ना करें, उसके अलावा भी आप काफी कुछ चीजें देखें। तो मगर हाँ, अगर क्वेश्चन आपका ये है कि जिनका पहले से मैरिज हो चुका है, जो प्रॉब्लम एक चल रहा है, तो मैं बोलूंगा वो सच में डिफिकल्ट है। मुझे भी वो लगता है कि मैं वहां पर मैं भी थोड़ा सा मुश्किल पाता हूँ कि वहां पे मैं क्लाइंट को क्या सजेस्ट करूं, बहुत मुश्किल लगता है। बट एक रेमेडी बताता हूँ, नवरात्रि चल रही है तो मैं अपना फेवरेट एक बताता हूँ जो मेरा मनपसंद है, जो मैं बताता हूँ। और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट एक्चुअली लिमिटेड टू एनी मेल और फीमेल। सो मैं एक रेमेडी बताता हूँ आपको। अगर किसी के बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड रिलेशनशिप्स हैं, तो अगर नवरात्रे चल रहे हैं तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम
और एनीवेज भी किया जा सकता है। तो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि थर्सडे और फ्राइडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को अगर नवरात्रि नहीं है, अदरवाइज आप कभी भी कर लीजिए नवरात्रों में, 9 के 9 दिन कर सके तो अच्छा है, वरना फर्स्ट और लास्ट डे भी कर सके। तो मैं एक रेमेडी बताता हूँ, जैसे कि क्लाइंट को कि आप पूजा घर से आप मेकअप का सामान खरीदिए, दुर्गा माँ, लक्ष्मी और काली के लिए, जो भी मंदिर आसपास हो, वेर एवर यू कैन मैनेज टू गो, तो आप मेकअप का पूरा किट ले लीजिए, जिसमें सिंदूर हो और नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो, बैंगल्स हो, चुनरी हो, हाँ। एवरीथिंग शुड बी देयर। आप फल ले लीजिए, थोड़े से फूल ले लीजिए, और एक चौमुखा दिया बना लीजिए, ठीक है, और अपनी श्रद्धा से जाइए, और हो सके तो नंगे पैर जाइए, ठीक है। वहां जाने के बाद आप वहां का जो प्रीस्ट होगा, जो पुजारी होंगे, उनको बोलिए कि मुझे मतलब माँ को ही अर्पित करना है, ये उनके लिए पूरी मतलब मेकअप है, इनके लिए चुनरी भी है, सारा सामान है, आप इनको पहनाइए, और मैं यहाँ पे बैठ के जो है मतलब आप आरती करिए, उनका दिया जलाइए, उनको भोग लगाइए, और वहीं पे बैठ के आप दुर्गा सप्तशती के अगर पहले 2-3 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो अच्छा है। अगर मगर कोई बंदा बोलता है कि सर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है रेमेडी से, आप यू कैन गिव मी द मोस्ट डिफिकल्ट वन, तो मैं बोलूंगा आप 9 के 9 दिन जाइए और पूरी दुर्गा सप्तशती 9 के 9 दिन में वहीं बैठ के खत्म करो, और भगवान से प्रेयर करो अपने जो एजिटेटेड रिलेशनशिप चल रहे हैं ना, उससे बाहर आने के लिए। तो इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। और मतलब है इसके अलावा और, बट मैं पर्सनली मैं इसको बहुत मैं मेरी पर्सनल मतलब मैं इसको मानता हूँ कि मेरे लिए ये रेमेडी मैं इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट को जिनके कुछ एजुकेटेड रिलेशनशिप्स हैं। तो मैं बोलता हूँ आप ऐसे करें, और इसमें भी वैरायटीज हैं। आप कैसे फाइंड आउट करें कि माँ काली के मंदिर में जाना है, दुर्गा में जाना है, बगलामुखी मंदिर में जाना है, और बहुत सारी हैं, 10 महाविद्याएं हैं, और या किसी शक्तिपीठ में जाना है। सो देयर आर टिप्स एंड ट्रिक्स टू which you can see in the chart based on the planet, based on you can mix the result of the two planets, but मैं एक generic remedy बता रहा हूँ जो कि कोई भी कर सकता है, because the question being asked, that is the reason why, if he or she is willing to do it, if the if there is a situation, I am hopeful that this remedy will work in her favor. Wonderful. So I hope that answered your question to some extent, how to leave a karmic relationship. And so, yeah, it's a difficult question because, everybody is going to look at it from their perspective. And मेरा तभी यही ख्याल आया था कि अगर कार्मिक है तो कभी कभी हमें उसको इंड्योर भी करना पड़ता है. बट आई एम श्योर अगर आप चार्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कर्मा कंप्लीट हो रहा है इस इंसान के साथ, तो आप उसको इंड्योर करें, कंप्लीट करें, एक्सेप्ट करें एंड खत्म करें. नहीं तो बार बार वही पैटर्न में हमें लोगों को मिलना पड़ता है, विच इज ट्रबलसम फॉर अस. एंड यू रियली वांट टू हैव एंड आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग हम रिलेशनशिप पे ही जाके अड़ते हैं. आर रिलेशनशिप विद मनी. मैं इसमें आपको एक वैरायटी और बताता हूँ. मान लीजिए वो चार्ट किसी मेल का है जी, और सेवेंथ हाउस में मान लीजिए कोई भी म्यूटेबल साइन है, या तो पाइसिस को पकड़ते हैं या मिथुन राशि को पकड़ते हैं, ठीक है. मिथुन हाँ, देखिए काल पुरुष कुंडली में 12वें घर को बोला जाता है कि माँ लक्ष्मी खुद विष्णु जी के पैरों में बैठी हुई है. 12वें घर को ऐसे माना जाता है कि वो वैकुंठ में लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों में बैठी हुई है, करेक्ट. तो अगर 7th हाउस में किसी मेल का चार्ट है, तो अगर मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है और वो बोलता है कि मेरे कुछ एजिटेटेड रिलेशनशिप चल रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं बट चीजें बन नहीं रही है मेरे साथ, तो मैं उसको बोलूंगा, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो मैं उसको बोलूंगा कि आप अपनी जो उनकी वाइफ है, मैं उनको बोलूंगा कि दिन में मॉर्निंग में एक बार उनको कोई आप अपने हाथ से बना के ग्रीन टी या नॉर्मल टी दें, और दिन में एक बार आप क्या करें कि मैंने क्या बोला कि 12वें घर में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, मगर अब आप क्या करें, अब आप लक्ष्मी जी के पैरों में खुद बैठ जाइए और पैर दबाइए. अगर 7वां घर अफ्लिक्टेड है और वहां पे पाइसेस राशि है, तो मैं बोलूंगा कि आप एक काम करें, आप खुद ही जो है अपनी वाइफ के पैर दबाइए, और अगर उनके पैर में एंकल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ही मेडिकेशन दो. जैसे कि पाइसेस राशि है तो मैं बोलूंगा कि आप पानी गर्म करें, उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट डालें और अपनी वाइफ को लाके दें, उसमें वो थोड़ा सा पैर थोड़ी देर के लिए वो डिप करें, और फिर आप उनको हेल्प करें हील होने में. और अगर किसी पाइसेस राशि में मान लीजिए 7वें घर में या मिथुन राशि में भी या सैजिटेरियस साइन में भी मान लीजिए वहां पे केतु है और राहु है, तो
क्लाइंट को ये एक रेमेडी दी जा सकती है जो बाहर जाके कहीं कर सकता है, उसके लिए ऐसा नहीं कि घर में करना है, वो फिश स्पा ले सकता है। डू यू नो व्हाट इज फिश स्पा? जिसमें फिश होती है एक छोटे से पॉन्ड में, आप पैर डाल देते हैं और फिश आके आपके जो डेड स्किन होती है उनको निकालती है। हाँ 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 जी, बिल्कुल, पहले बहुत पॉपुलर था, लोग करते थे। हाँ हाँ। तो वो भी किया जा सकता है, बट जितना रिजल्ट उसका मिलता है जिसमें खुद एक बंदा अपनी वाइफ के लिए थोड़ा पैर दबाए करे, तो जो उसमें मतलब रिजल्ट है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा किसी में नहीं होंगे। बट उसको थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कहने का जी मतलब ये है। जी तो जी। आप सिग्निफिकेशन को साथ में घर में ला सकते हैं हम्म। अपने ठीक है। तरीके से। तो आप कह रहे हैं, जस्ट फ्रॉम द पेंडिंग कर्मा पर्सपेक्टिव, दैट 12th हाउस यूजुअली विल सिग्निफाई आपका लाइफ का कर्मा, करेक्ट? पास्ट लाइफ का कर्मा नहीं, 12th हाउस में रहता है, राइट? ज्यादा। एक बार राधिका जी, मैं सुन नहीं पाया, एक बार प्लीज रिपीट करें। 12th हाउस जो है, 12वां भाव जो है वो फिर पास्ट लाइफ का कर्मा रहता है, इंडिकेटर रहता है कि आपका क्या कंप्लीट इनकम्प्लीट हुआ है या क्या किया आपने लास्ट टाइम, ऐसा जी दिखाता है, आप कह रहे हैं? जी, 12वां अगर दिखाता है पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ, ओके। इमीडिएट पास्ट लाइफ, योर इमीडिएट पास्ट लाइफ, ओके। लास्ट लाइफ के बारे में आप डिकोड कर सकते हैं। आप पास्ट लाइफ का जो हाउस है, आप उसको लग्न भी बना के देख सकते हैं, बहुत कुछ चीजें वहां से भी पता चल जाएगी आपको। 12वें घर का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, उससे भी आपको चीजें पता चलेंगी मेरा एक कि क्या। क्वेश्चन है, अगर आपके 12th हाउस में लुमिनरीज हैं, सन या मून है, और ओके, जैसे हम चंद्र कुंडली देखते हैं और सोलर कुंडली भी देखते हैं, D1 अलग हो जाता है, और इसमें अगर मून और सन है, वो कुछ अलग महत्व होता है उसका 12th जी हाउस में? 12वें, जी 12वें घर में सूर्य तो अच्छा माना जाता है, मगर 12वें घर में चंद्र को अच्छा नहीं माना जाता है। तो हाँ सूर्य इज कंसीडर टू बी गुड, मगर वो कहते हैं वो मरण करण स्थान है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जी और जी। लाल किताब में 12वें घर में बोलते हैं कि रात की सुनामी बोला जाता है अगर वहां चंद्रमा हो तो हर एक चीज का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। मगर अगर चंद्रमा है तो हम क्वेश्चन ये पूछेंगे क्लाइंट से कि आपके रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ कैसे हैं, हम्म ये पूछेंगे। और हम ये पूछेंगे कि मतलब आप अपनी मदर के लिए क्या करते हो, आप अपना जो सैलरी लेते हैं तो क्या आप अपने मदर को कुछ उसमें से देते हैं, या जस्ट वो अपनी लाइफ उनकी ऐसी चल रही है। तो 12वें घर को कि चंद्रमा को समझने के लिए आपको क्लाइंट से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि उनके रिलेशनशिप उनकी मदर के साथ कैसे हैं। और सूर्य है तो आप पिता से पूछिए कि उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, तो आधा तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि उनके साथ के जो रिलेशनशिप हैं मतलब बहुत ज्यादा खराब हैं, तो आप उनको बोलिए अच्छा करें। क्योंकि लाल किताब में ऐसे ही समझाया जाता है, अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो पहले आपको बोला जाएगा कि आप पहले घर से रेमेडी करो। घर से रेमेडी व्हाट कुड बी बेटर देन स्टार्टिंग आउटसाइड फ्रॉम योर होम। इट शुड बी गुड इफ यू स्टार्ट विद इन होम। तो अपने रिलेशनशिप अपने मदर और अपने फादर के साथ अच्छे करें। और जी जेमिनी में आप 12वें घर का पता देखिए कहाँ बैठा है, तो आपको मिरर इमेज पता चलेगी। आप D12 चार्ट भी देख सकते हैं 12वें घर को समझने के लिए। जी जी, राइट। हम्म, So that's very interesting because mother and father का ये and sometimes I feel कि आपकी लाइफ में जब relationships better होते हैं, वो भी एक इंडिकेटर है कि वो planets आपके लिए better हो गए हैं। जैसे जी आपकी करेक्ट। रिलेशनशिप आपके से वाइफ हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ बेटर हो गया, तो मीन्स योर वीनस इज इम्प्रूव्ड। अगर आपके बच्चों के साथ हो गया तो कई लोग जुपिटर को बच्चे भी देखते हैं, इवन हस्बैंड भी देखते हैं कई वुमेन के चार्ट में, करेक्ट? कहीं स्कूल ऑफ जी एस्ट्रोलॉजी में। सो जी मदर एंड फादर के साथ अगर आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, यू कैन से योर सन एंड मून इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, isn't it? यस We can look करेक्ट, at it inversely. Yes, yes. एब्सोल्युटली। This is such an interesting topic, Prakash ji. I can sit and talk about it for hours, and I am sure people who have information on astrology and the whole why I like to call people who know Jyotish is because I find this such a profound and a beautiful science that people have misunderstood. It is the science of how to live life, is what I feel. And it is so beautiful, and especially karma, because karma, what we have come here to fulfill, we must do, because that also becomes incomplete. Every moment of our life, the way we feel in harmony with life is when we are complete in the moment with life. And एब्सोल्युटली। the way I looked at what your topic was, and I said, this is an opportunity. We understand what is our pending karma.
then we understand how we can be complete with our life, how to live it completely, how to be complete with it. So that when we move forward in our journey, we can move with lighter baggage or better experiences, greater evolution, more Yeah. joy, and make this world a lighter place, because there is so much of sadness and sickness and depression in this world, which is a reflection on the collective karma. People have not understood what they need to do, how they need to go about life. Um, and people are generating such negative karma. आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पे है या न्यूज पे है, इतनी नेगेटिविटी है, हम उसमें या तो पार्टेक करते हैं या वो जेनरेट करते हैं या उसके बारे में बात करते रहते हैं, एंगर दिखाते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, एंड इवन डिबेट्स क्रिएट करते हैं. दीज आर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट फॉर्मिंग बिहेवियर्स, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे लाइफ में जरूर. Oh, Prakash ji is gone, and this. So what I was trying to say to him is that I think this conflict starts reflecting in our life. Prakash ji, can you hear me? Yeah, I can hear you perfectly fine. I can't see you. So that's the thing. We are running out of time, Prakash ji. And I know there is so much we can talk about, but I am just, we are running out of time. So we will definitely. I want to. थोड़ा सा इसको Yes. Conclude करना चाहूँगा. The entire concept I would like to conclude, because of course. we discussed so many things. Yeah. So first thing, Sanchit karma, which can be understood from the 5th house, and after 5th house we come to 9th house, which is our prarabdha. Prarabdha can be divided into 3 categories: fixed karma, non-fixed, and drid karma. So out of that, fixed karma cannot be altered. What we can alter is the planet which are sitting in the non-fixed karma signs and the mutable signs. And the pending karma lies in only these signs: Char Rashi and mutable sign. You can redeem yourself by using the signs or planet in these certain signs, right? And the third thing is the Kriyaman karma. Unless you will exercise your Kriyaman karma or free will, you cannot redeem your pending karma. So bottom line is this: Sanchit, Prarabdha, everything is fine. If you don't exercise your Kriyaman karma, you cannot, close your Prarabdha account. So to closing your account, you need to exercise your Kriyaman karma. That is very important. And trust me, I'm telling you, we should believe in the fact that we should be in the habit of giving. Unless you give to the nature, you cannot expect anything out of it. You should be in the habit of giving, and don't believe in give and take relationship. Always believe in give and get. Once you give, only then you get. This phenomena I think I lost Prakash ji. Can you hear me? I think he dropped off the call. I want to thank all my viewers, live viewers, especially Amrita. You have sat there in the middle of the night to hear this. Totally grateful to you. You sacrifice your night's sleep. So thank you very, very much. Prakash ji has left the call, I think, and or I don't know whether he can hear me. Prakash ji, can you hear me? Yes, I can hear you perfectly fine. Okay. So, yeah. So, very, very, I think a very important thing you said about giving, that in life we must give back to nature, give back to everything, our environment, rather than we are so orientated in taking things rather than giving back. We never understand the concept of giving back truly. And everybody has a different way of giving, but in our own capacity to give back, I think that's such a beautiful way to put this together. And so thank you, Prakash ji. I will have to end this Instagram because I think, if I'm not mistaken, there is a little cap on it. And this video will be available on YouTube in a while. And so, Prakash ji, you can share it with your viewers as well. I believe you also consult and, you do personal consultation. So if anybody is interested in getting in touch with Prakash ji, they can do so. And thank you very, very much. I hope you enjoyed being here as much as I enjoyed having you here. Thank you so much. Thank you so much, Radhika ji. Thank you so much. Yes, I enjoyed a lot. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.